number of times the variable is repeating. Next time you say what the f, that is what the frequency. Change your mind. Let the people think. But we are talking in terms of frequency. Okay? That is frequency. F stands for frequency. That is number of times the variable is repeating. Number of times the variable is repeating. Now, CI is not compound interest in stats. It is class interval. It is class interval. It is class interval. या तो 0 से 10, 10 से 20 ऐसा रहेगा, या 1 से 10, 11 से 20 ऐसा रहेगा. क्लास इंटरवल दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 1 से 10, 11 से 20. These both are class interval. The left hand is known as the lower and the right hand is known as the upper. This part is called lower class and this portion is called the upper class. This is called the upper class. And the gap between the two, is called class width. Gap between the two is called class length or class width. Is called class length or class width. Generally it is denoted by the term small I. Generally this thing is denoted by the term small I. Generally this term is denoted with the term small I. Now, when I assign frequencies behind this class interval will be called as group frequency distribution, and we take the help of tally marks. Exam में क्वेश्चन पूछेगा tally marks. एग्जाम में टैली का मार्क्स नहीं पूछा है. टैली मार्क्स इज नेम जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. एंड जैसे जेल में दिन काटते हैं वैसे टैली मार्क्स निकालते हैं. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट व्हाट, फ्रीक्वेंसी. तो लिखो with the help of tally marks, with the help of tally marks, with the help of tally marks we denote frequency, we calculate frequency. With the help of tally marks we calculate frequency, and when frequencies are written, corresponding to class interval, and when frequencies are written corresponding to class interval, when frequencies are written corresponding to class interval, it is called grouped frequency distribution. 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 अब हेडिंग दो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और वहां से दो एरो निकालेगा. हेडिंग दो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और वहां से दो एरो निकालेगा. हेडिंग दो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड वहां से दो एरो निकालना है. एक में लिखो एक्सक्लूसिव, एक में लिखो इंक्लूसिव. एक में लिखो एक्सक्लूसिव, एक में लिखो इंक्लूसिव. एक में लिखेगा एक्सक्लूसिव एंड नेक्स्ट में लिखना है इंक्लूसिव. नेक्स्ट में लिखना है इंक्लूसिव. Now what do you mean by exclusive? That is class interval दिया हुआ है, frequency दिया हुआ है. यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 and frequency दिया रहेगा ऐसे. frequency दिया रहेगा ऐसे. इसका मतलब continuous, जो सीरीज continuous है उसको बोलते हैं exclusive. We can call it as continuous या फिर overlapping. We can call it as continuous या फिर overlapping. Why the name exclusive? Because while calculating the class length we exclude upper limit.
upper limit is excluded while calculating class length. That is, अगर हम पूछेंगे कि तुम लोग बताओ क्लास लेंथ कितना है, इफ यू काउंट लाइक दिस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 10 भी लेते हैं तो क्लास लेंथ 11 आ जाएगा. 0 से 10 का मतलब क्या होता है? देयर आर 11 नंबर्स, बट वी एक्सक्लूड द पार्ट 10, वी एक्सक्लूड द अपर लिमिट. अब कैलकुलेट करो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाउ इट इज कमिंग टू 10. इसका मतलब सर अगर मेरा कोई मार्क्स किसी का 10 आया तो हम लोग कहां लेंगे? नीचे वाले पे लेंगे. तो लिखो if someone has scored 10, if someone has scored 10, it will be taken in the second class interval. If someone has scored 10, it will be taken in the second class interval. In the second class interval. In the second class interval. Next, we move on to inclusive series. यहाँ पर भी आपको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा. यहाँ पर ऐसे 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 4, 3, 2, 1. Now you can easily compare the difference between the two. सर यहाँ कंटिन्यूअस था, यहाँ डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ एक के ऊपर एक चढ़ रहा था, मतलब जहां से खत्म हो रहा वहीं से शुरू. यहाँ पर देयर इज अ डिफरेंस, मतलब दिस इज नॉन कंटिन्यूअस, नॉन ओवरलैपिंग, एंड यहाँ पर इंक्लूसिव नाम इसलिए गिरा है क्योंकि अपर लिमिट is considered, अब तुम क्लास लेंथ निकालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 भी लेंगे अपने. अगर 9 तक छोड़ देते हैं तो 9 ही आ रहा है, बट यहां पर 10 भी लेंगे. तो एक सिंपल सा बात है, हम लोग इतना झमेला करेंगे नहीं. क्लास लेंथ का फॉर्मूला क्या है? जब भी कंटिन्यूअस रहेगा अपर माइनस लोअर. लिखो फॉर्मूला फॉर क्लास लेंथ, in case of continuous, formula for class length in case of continuous, upper limit minus lower limit. Formula for class length in case of continuous, upper limit minus lower limit. ठीक है. In case of discontinuous, upper limit minus lower limit plus the difference. That is, यहां पर 1 का है तो 1 ऐड करेंगे. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस डिफरेंस. माइंड माय वर्ड्स प्लस डिफरेंस लिखा है क्योंकि तुम लोग तो रट लिया है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, क्योंकि मैक्सिमम सम विच वी डू उसमें डिफरेंस 1 का ही रहता है. लेकिन कल को ऐसा सम आ गया जहां पर डिफरेंस 0.1 का है, तुम क्या करेगा? 6.0 माइनस 5.1 प्लस 1 गलत हो जाएगा. हमेशा वी ऐड द डिफरेंस, दैट इज वहां पर 0.1 ऐड करेंगे. तो यहां पर डिफरेंस 1 का है तो 1 ऐड करेंगे. जहां 0.1 का डिफरेंस है तो वहां 0.1 ऐड करेंगे. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्लास लेंथ इन केस ऑफ डिसकंटीन्यूअस? इट इज अपर माइनस लोअर प्लस डिफरेंस बिटवीन व्हाट? Between upper limit of a class interval and the lower limit of the succeeding class interval. जो डिफरेंस यानी कैसे निकाल रहे हैं? अपर लिमिट एक क्लास इंटरवल का एंड द लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवल. ठीक है, ये हो गया. दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल. जब लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज नॉट नोन, इट इज कॉल्ड ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपल सा है सर. जब लोअर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल या अपर क्लास लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास इंटरवल या दोनों नहीं पता रहेगा, तब क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन.
write it down. When the lower limit of first class interval, when the lower limit of first class interval or the upper limit of second class interval or the upper limit of second class interval is not known, then we call it as open end distribution. Open end distribution. Open end distribution. In case of grouped frequency distribution, in case of grouped frequency distribution, x is equals to mid value. X is equals to mid value of the class interval. In case of group frequency distribution, in case of group frequency distribution, x is equals to mid value of the class interval. That means lower plus upper divided by 2. That is lower plus upper whole divided by 2. Lower plus upper whole divided by 2. Now, this exclusive series का जो क्लास इंटरवल है, इसको अपने क्लास बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं. मतलब कंटिन्यूअस इंटरवल को भी ऑल्सो कॉल इट्स व्हाट? क्लास बाउंड्री. इसको अपने क्लास बाउंड्री बुलाते हैं. What is class boundary? Lower class boundary is the lowest limit of a class interval. Upper class boundary is the upper limit of a upper class limit. ठीक है? तो एक सवाल ये उठता है, क्या इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ या ना? हाँ. क्वेश्चन बनाओ. Can inclusive be converted into exclusive? Can inclusive be converted? Can inclusive be converted into exclusive? आंसर होगा हाँ हाँ हाँ. 3 बार हाँ, क्योंकि 3 स्टेप है ना. 3 बार हाँ मतलब 3 स्टेप है. हाँ हाँ हाँ. Follow 3 simple step. Follow 3 simple step. Follow 3 simple step. सर वो 3 सिंपल सा स्टेप क्या है? सबसे पहले स्टेप 1 में डिफरेंस निकालना है. दैट इज 11 माइनस 10 1. जो भी डिफरेंस है वो निकालो. दैट इज 11 माइनस 10 1. स्टेप 2 में एडजस्टमेंट फैक्टर या करेक्शन फैक्टर. स्टेप 2 में एडजस्टमेंट फैक्टर बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर. That is difference by 2.50. That is difference by 2.50. Step 1 में difference निकालेंगे 11 minus 10 1. Step 2 में we find out adjustment factor या फिर what? Correction factor. That is difference by 2. That is difference by 2. Now step 2 आ गया. Step 3. Subtract adjustment factor from all lower class limit. Subtract adjustment factor from all lower class limit and add adjustment factor from upper class limit. Subtract adjustment factor from all lower class limit and add adjustment factor from all upper class limit. Let us see an example. 1 से माइनस करने बोल रहा है 0.5 and then 10 से प्लस करने बोल रहा है 0.5. तो we get 0.50 से 10.50. We get 0.50 से 10.50. Let us calculate the class boundary. 0.50 से 10.50, 10.50 से 20.50. मजा आ रहा है देखो, फटाफट हो रहा है. एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद यू नीड टू नेवर फियर फ्रॉम मैथ्स.
कि जो लोग ये रट के जाएगा कि 0.5 से ही माइनस होना है, वो लोग कहां गलत हो जाएगा, जब डिफरेंस 0.1 का आ जाएगा, क्योंकि तब 0.05 माइनस करना होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन है इसके डिफरेंस 1 है, याद करना इज ओके कि 0.5 माइनस करना है, 0.5 ऐड करना है, बट अगर सम चेंज कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा। सो वी विल गो फ्रॉम द बेस। सर स्टेप 1 में क्या निकालना है, डिफरेंस, स्टेप 2 में डिफरेंस बाय 2, स्टेप 3 में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल द लोअर क्लास लिमिट एंड ऐड फ्रॉम ऑल द अपर क्लास लिमिट। क्लियर? क्लास बाउंड्री सीख गए हम लोग। लेकिन ये एलसीबी एंड यूसीबी का मतलब क्या होता है, देखो, लोअर क्लास बाउंड्री इज द लोएस्ट लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री, इस बार एलसीबी में पूछेगा ये क्वेश्चन, लोअर क्लास बाउंड्री इज द लोएस्ट लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री इज द लोएस्ट लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास इंटरवल होगा, टू लोअर क्लास इंटरवल, अपर क्लास बाउंड्री इज द मैक्सिमम लिमिट, अपर क्लास बाउंड्री इज द मैक्सिमम लिमिट टू अपर क्लास इंटरवल। सर आपका बोलने का मतलब क्या है कि अगर 10.49 आया तो एज पर द टेक्निक 10.49 कहां जाता है, 10 माना जाता है ना, कि 0.5 या उससे ऊपर हुआ तो 11। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं कि 0.5 या उससे बेसी होने से 11, वरना वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट से लिया है। मान लो 0.51 होता तो क्या लेते हैं, 1, 0.7 होगा तो क्या लेंगे, 1, लेकिन 0.49 आएगा तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, बहुत बार पूछता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी बिलो 0.50, आंसर 0। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी अबव 40.50, 0, क्योंकि जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी है वो 0.50 से 40.50 के बीच में है। क्लियर?